کراچی کے علاقے لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں قائم فیکٹری میں لگنے والی آگ بے قابو، آگ نے ایک اور فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ حکام نے فیکٹری میں لگی آگ تیسرے درجے کی قرار دے دی۔ فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں 2 اسنارکل آگ پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف۔ چیف فائر آفیسر KMC ہمایوں خان کا کہنا ہے کہ متاثرہ عمارت میں روئی اور پلاسٹک موجود ہے۔ آگ لگنے کے باعث متاثرہ فیکٹری کی دیواروں میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق متاثرہ فیکٹری کے اندر کوئی موجود نہیں ہے۔ لانڈی اور شیرپاؤ ہائیڈرنٹس پر ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا گیا۔ ڈیپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کی لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون آمد۔ فیکٹری میں لگی آگ بجھانے کے لیے ریسکیو آپریشن کی نگرانی کی، کہا کوشش ہے کہ آگ پر جلد قابو پایا جائے۔ KMC کے فائر فائٹرز ریسکیو آپریشن میں سرگرم ہیں۔ مختلف شاہراہوں پر احتجاج کے باعث فائر بریگیڈ کی آمد و رفت مشکلات ہیں۔ واٹر کارپوریشن اور دیگر ادارے ریسکیو آپریشن میں تعاون کر رہے ہیں۔ پھر نمازی، پھر مسجد، پھر حملہ۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے مضافاتی علاقے ترلائی کی مسجد میں پھر نمازی، پھر مسجد، پھر خودکش حملہ۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے مضافاتی علاقے ترلائی کی مسجد میں خودکش دھماکہ، 31 افراد شہید، 150 سے زائد زخمی۔ خودکش بمبار نے افغانستان سے دہشت گرد کارروائی کی تربیت حاصل کی، متعدد بار افغانستان کا سفر بھی کیا۔ اسلام آباد کی مسجد میں خودکش حملہ کرنے والے بمبار کی شناخت ہو گئی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق افغانستان میں موجود مختلف دہشت گرد گروہ طالبان رجیم کی سرپرستی میں خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان میں ہر دہشت گردانہ کارروائی کے پس پشت افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے۔ سانحہ اسلام آباد، کراچی سمیت ملک بھر میں احتجاج۔ مجلس وحدت مسلمین کا سانحہ اسلام آباد پر 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ دہشت گردی کے خلاف صوبے بھر میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں سانحہ اسلام آباد کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ شارع پاکستان، انچولی، ملیر نمائش، ابوالحسن اصفہانی روڈ اور عباس ٹاؤن میں احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ مظاہرین کا دہشت گردوں کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ۔ ملک بھر میں ہونے والی دہشت گردی میں ہمسایہ ملک ملوث ہے۔ خودکش بمبار کی ٹریول ہسٹری افغانستان کی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی تصدیق۔ اسلام آباد دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ جنگ ہم جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں اور جیت رہے ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کو ان کی سوچ سے زیادہ نقصان پہنچا گیا۔ دہشت گرد بزدلی کے آخری حدود کو چھو گئے۔ یہ سافٹ ٹارگٹ پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ بھارت نے 3 گنا انویسٹمنٹ بڑھائی۔ یہ لوگ ڈالرز کے لیے دہشت گردی کر رہے ہیں۔ افغانستان کو ہم نے بہت بار بتایا ہے کہ آپ ہمسایہ ہیں، آپ پر ہمارے بہت احسانات ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ وزیر دفاع خواجہ آصف کے اسلام آباد پر کچھ حملے پر رد عمل، کہا دھماکے کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ طارق فضل چودھری کہتے ہیں کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، جبکہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں متحد ہے اور تمام عناصر کو جہنم واصل کیا جائے گا۔
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में धमाके पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा कि जहाँ बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत, ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलत फराहम करने की हिदायत करते हैं। कहा है कि बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कौम मुश्किल की इस घड़ी में मुतासिर ख़ानदान के साथ है। पाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। वज़ीर आज़म की वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके ज़िम्मेदारान की फ़ौरी तयन की हिदायत। वज़ीर आज़म को वफाकी वज़ीर सेहत को ज़ख्मियों की खुद निगरानी करने का हुक्म। कहा धमाके के ज़िम्मेदारान का तयन करके इन्हें करार वाक़े से दिलवाई जाए। मुल्क में शरपसंदी और बेअमनी फैलाई जा रही है जिसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश धमाके के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बसंत की आज की तकरीबात मनसूख कर दी। लिबर्टी स्क्वायर पर मेगा बसंत शो भी मनसूख कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कल बसंत की अपनी तमाम मसरूफियात भी मनसूख करने का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत ने इस्लामाबाद धमाके के शोधा के लवाहे की सजा यकजहती के लिए कल्चरल नाइट मौसीकी प्रोग्राम मनसूख कर दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिल नामिमन ने बता दिया कि दौलत मुश्तरका की पार्लिमानी एसोसिएशन के एजाज़ में मौसीकी प्रोग्राम के बगैर सादगी से इशाया दिया जाएगा। शोहदा के अहले खाना के जज्बात का एहतराम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। कहा खुदकुश हमला इंसानी दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। वज़ीर आला सिमरान अली शाह कहते हैं कि कौम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करके ही दम लेगी। पूरी कौम मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे में अपना किरदार अदा कर रही है। मज़हब के नाम पर इंसानों का कत्ल हैवानियत है। दुनिया के सारे मज़ाहिब अमन व मोहब्बत का दर्ज देते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। शहादतों पर इजहार अफसोस। कहते हैं धमाकत नफरत और दहशतगर्दी मज़मूम कोशिश है। नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर मदरामद सूबों और वफाक के लिए पहले से ज़्यादा लाजिम हो चुका। शहरी तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन जिम्मेदारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दों से आनी हाथों से निपटें। उज़्बेकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात और तजारती रवाबित में इजाफा खुशाइंद है। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा निजी शोबों के दरमियान 3 अरब 40 करोड़ डॉलर की समझौतों पर अमल दरामद अहम पेशरफ्त है। गुज़श्ता बिजनेस फोरम की बदौलत बाहमी तिजारती सरगर्मियों में खातिर खा इजाफा हुआ। बाहमी इक़्तिसादी ताउन सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए बिजनेस फोरम मौसर प्लेटफॉर्म है। दोनों ममालिक में बाहमी तिजारत के मज़ीद फ़रोग़ की सलाहियत मौजूद है। बाहमी तिजारत का हजम 2 अरब डॉलर तक ले जाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों का मुतरफ़ हूँ। उज़्बेकिस्तान के सदर का खिताब। कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात तस्हीरुल जहती शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। मुआहिदों पर अमल दरामद से बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों ममालिक में तिजारती ताउन को वसअत देंगे। सदर उज़्बेकिस्तान को आला तरीन एजाज़ निशान पाकिस्तान देने की तकलीफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को निशान पाकिस्तान अता किया। दोनों मुल्कों की कौमी तराने भी बजाए गए। हुकूमत और अपोजिशन नया चलन, आग और पानी का मिलन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपोजिशन लीडर से मुलाकात का फैसला। डॉक्टर फारिक फजल चौधरी ने PTI को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से आइंदा हफ्ते मुलाकात करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से महमूद खाना चौधरी की क़यादत में अपोजिशन वफ़द की मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने 8 फरवरी की हड़ताल की हिमायत कर दी। कहा हम अपने मुतालबे पर कायम हैं, नए इंतख़ाबात का मुतालबा करते हैं। हुकूमत को अपनी नाकामी का एतराफ़ करना चाहिए। महमूद खाना चौधरी ने कहा कि हमने जमहूरी अंदाज से पुरअमन एहतजाज का फैसला किया है। हमें गलतियों को मानना होगा और आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म मेरे पास आना चाहते हैं तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं कि शहबाज शरीफ मेरे पास आएँ।
पाकिस्तान पुरअमन जिम्मेदार रियासत है। खित्ते के इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में यंग लीडर्स के इस्तकबालिया से खिताब। कहा, दुनिया में अमन तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत है। रंग, नस्ल और मज़हब की बुनियाद पर तफरीक का खात्मा करना होगा। नौजवान नस्ल दुनिया में मज़बूत तब्दीली के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। हम गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए क्या कर रहे हैं? 2 से 3 हफ्ते में गुल प्लाजा मुतासरीन को पैसे दिए जाएंगे ताकि वो अपना कारोबार चला सकें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा मुतासरीन को बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहा, कराची चेंबर ने हमें गुल प्लाजा के दुकानदारों की फहरिस्त बना कर दी है। हमने मुतासर दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए देना शुरू कर दिए हैं। मुतासरीन के कारोबार सामान के नुकसान का तखमीना लगाकर अदायगी करेंगे। 2 माह में मुतासरीन गुल प्लाजा को इमदादी रकम और मुतबादिल जगह देंगे। गुल प्लाजा की जगह किसी नई बड़ी इमारत की तामीर नहीं होगी। गुल प्लाजा में जितनी दुकानें थीं उतनी ही दुकानें बनाएंगे। इस शहर को सानेहा से बचाने के लिए आवाम के ताबून की अशद ज़रूरत है। सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन की बहाली का बड़ा फैसला। मेयर कराची का गुल प्लाजा की तामीर से कबल दुकानदारों को रिलीफ देने का ऐलान। मुर्तज़ा वक़ाफ़ का KMC हुकाम को बहाली मनसूबा तैयार करने की हिदायत। रमज़ान मुबारक में गुल प्लाजा के मुतासरीन को ब्लॉक्स के साथ बिला किसी मुआवजे के 1200 स्टॉल्स लगा कर देने का फैसला। अफसरान को गुल प्लाजा के दुकानदारों और इंतजामिया से रब्ता करने की हुक्म। मेयर कराची कहते हैं, पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत और KMC सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म को कराची आने की तौफीक नहीं हो सकी। MQM, PP और नून लीग को शहर की कोई फिक्र नहीं। सानेहा गुल प्लाजा के 3 हफ्ते गुजरने के बाद भी लोग अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं। ऐसे हालात में खामोश नहीं रहा जा सकता। अमीर जमात इस्लामी कराची में मुज़फ़्फ़र खान कहते हैं, कराची के लोगों को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। डकैती मज़ाहमत पर मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हो चुके। ट्रैफिक हादसात में लोग जान से गए, अपाहिज हो गए। कुत्ते के काटने के 1800 वाक़यात रुनुमा हो चुके हैं। IG साहिब ने अहद फरमा लिया, 1 जनवरी से फुल फ्लाई ऑपरेशन जारी है। पुलिस के खून का हिसाब अब लम्हों में होगा। कबायली आग को बुझाने का बेड़ा भी उठाया है। IG सिंध जावेद आला मोडो कहते हैं, मीडिया और पुलिसिंग का गहरा ताल्लुक रहा। क्राइम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन कम ज़रूर हुआ है। M9 समेत तमाम रास्तों को महफूज तर बनाया है। शोर फेरोज में बालाई लिंक रोड के करीब दिलखराश हादसा। तेज रफ्तार ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 4 अफराद जाँ बहक। 2 ख़वातीन, 1 बच्चा और 1 मर्द जाँ बहक अफराद में शामिल हैं। ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने ट्रॉलर को तहवील में ले लिया। एक्सपो सेंटर कराची में 21वीं 3 रोज़ा माई कराची नुमाइश सज गई। वज़ीर आला सिंध अली शाह ने इफ्तिताह किया। ये नुमाइश शहर के कारोबार, सकाफत और कम्युनिटी की अहम तकरीब बन चुकी है। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम शहर की तजारती अहमियत में इजाफा करते हैं। कराची के हर शहरी और सरमायाकार को महफूज बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। ताजिर बरादरी कराची के मुस्तकबिल की तश्कील में मरकजी किरदार अदा कर रही है। दो फितने जब एक हुए, गठजोड़ बना फितनतुल हिंदुस्तान और बलोचिस्तान यकजहती कमेटी का गठजोड़। बेनकाब बलोचिस्तान में नाम नेहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी बलोच यकजहती कमेटी और फितनतुल हिंदुस्तान के गठजोड़ को बेनकाब करती है। 31 जनवरी को बलोचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमलों की सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक़्त और मौसर कार्रवाइयों से नाकाम बना दिया गया। मस्तूंग में बलोच यकजहती कमेटी के नाम नेहाद लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द बुरहान बलोच और हफीज़ बलोच भी जहन्नुम वासिल। बलोच यकजहती कमेटी के लापता अफराद की फहरिस्त में दहशतगर्द अब्दुल हमीद और राशिद बलोच भी शामिल थे, जिन्हें जहन्नुम वासिल किया गया। इससे कबल फितनतुल हिंदुस्तान के मारे जाने वाले मुत्तहद दहशतगर्दाना लापता अफराद की लिस्ट भी शामिल। हाथ जोड़ लिए, पांव पकड़ लिए, हथियार डाल दिए। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमाया समरात। इलाके के बदनाम दहशतगर्दों ने हथियार डाल दिए। सूबे में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और वज़ीर आला बलूचिस्तान की भाई मीर आफ्ताब बुक्की की कोशिशें कामयाब।
کہ میر خان اچکزئی نے 25 ساتھیوں سمیت ریاست کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ سرنڈر کرنے والے گروہ ماضی میں ڈکیتی و بھتہ خوری کی وارداتوں میں ملوث رہے۔ سرنڈر کرنے والے عناصر نے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی جمع کروا دیا۔ میرا خان اچکزئی کا شدت پسند عناصر کے خلاف چکرانی آرمڈ فورس میں شمولیت کا بھی اعلان۔ ملک میں سونے کی قیمت میں ایک بار پھر بڑی کمی، فی تولہ سونا 21,400 روپے سستا ہو گیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت 5,07,762 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 18,347 روپے کمی، 10 گرام سونا 4,35,324 روپے کا ہو گیا۔ جب پاکستان نے بھارت کو اوقات یاد دلائی ورلڈ کپ تو گئے۔ پاکستان کا T20 ورلڈ کپ میں بھارت سے نہ کھیلنے کا فیصلہ۔ دنیا کرکٹ کے سب سے بڑے مارکے کے نہ ہونے پر بھارتیوں کا رونا دھونا بے رونق ورلڈ کپ بننے لگا۔ خواب ڈراؤنا ہو چکا ہے۔ ورلڈ کپ میں شامل 19 ٹیموں کے میچز میں شائقین کرکٹ اپنی دلچسپی سب کی نگاہیں صرف پاکستان کے انکار پر۔ ذرائع کے مطابق سری لنکا کے پاکستان سے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست۔ رپورٹ کے مطابق سری لنکا کرکٹ نے PCB کو خط لکھ کر آگاہ کیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہائی پروفائل میچ منسوخ ہونے کی صورت میں سری لنکا کو بھاری مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میلہ سجے گا آج، میدان سجے گا۔ T20 ورلڈ کپ کا آج سے باقاعدہ آغاز ہوگا۔ پاکستان ٹیم اپنا پہلا میچ نیدرلینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ ICC کا T20 ورلڈ کپ کے لیے کمنٹری پینل کا اعلان۔ کمنٹری پینل میں پاکستان کے 4 نام شامل، لیجنڈ وسیم اکرم، وقار یونس، بازید خان اور رمیز راجہ ورلڈ کپ کی کمنٹری کریں گے۔ دیکھیے روہی شاستری، ناصر حسین، ایڈ اسمتھ، این بشیر اور ایرون فنچ بھی شامل ہیں، جبکہ دیگر کمنٹری کے فرائض کو انجام دیں گے۔ اور اب یہی رہ گیا ہے کہ عثمان طارق اپنے گلے میں لکھ کر ڈال لیں، میں کلیئر ہوں۔ کولمبو میں قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان آغا کی پریس کانفرنس کا کہا، عثمان طارق کی ایکشن میں کوئی ایشو نہیں، 2 بار کلیئر ہو چکے ہیں، ہمیں پہلے میچز کا دباؤ نہیں، سب میچز جیتنے کی کوشش کریں گے، تینوں میچز جیت جائیں گے تو پھر رن ریٹ کی زیادہ ضرورت نہیں، بس پلان پر کام کرنا ہے۔ دنیا کا سب سے لمبا جنگلی اژدہا سانپ انڈونیشیا میں دریافت